Shri Manohar Lal ji and Shri Arjun Ram Meghwal ji, esteemed judges of the Supreme Court, Honorable Chief Justice of the High Court of Punjab and Haryana, distinguished judges of the High Court, members of the Bar, officers of the judiciary, and friends from the fraternity, ladies and gentlemen. The Honorable Prime Minister has reminded us that ease of doing business and ease of living are possible only when justice is also ensured. That thought captures why we are all gathered here today. India is on its way to becoming a $5 trillion economy, and an efficient economy runs fundamentally on the rule of law. The foundational enablers of Viksit Bharat 47 are clear: unambiguous laws, effective institutions and reforms that deliver real outcomes. These are the foundation of this vision, and the Tower of Justice as it stands today is a concrete step towards it. The government has remained steadfast in building a modern, citizen-centric justice ecosystem. A task force for next-generation reforms is reviewing laws and procedures to ease compliance for startups and businesses. Over 1,500 obsolete laws have been replaced since 2014. Minor offences decriminalized through the Jan Vishwas Act and the Bharatiya Nyaya Sanhita have ushered in trust-based, citizen-sensitive and digitized criminal justice. These reforms are designed to carry India towards a Sashakt Bharat that is self-reliant, secure and confident. India has nearly 50 million pending cases, and every delay locks up capital and disrupts business. The National Judicial Data Grid, expansion of commercial courts and procedural streamlining are helping to accelerate disposal. Further, the Jan Vishwas Act has decriminalized over 180 provisions, replacing jail terms with penalties for minor lapses. And across the system, technology from e-filing to AI-based case management is making justice faster and more transparent. Today's inauguration of the Tower of Justice, spanning 7 acres with a capacity of 56 courtrooms, is a living embodiment of our resolve that justice shall neither be delayed nor denied. Gurgaon, a vibrant engine of India's growth, now receives justice infrastructure to match its economic stature. A Krishi and Nursing Mothers Room, dedicated litigant waiting areas, bar rooms and library reflect a genuine focus on dignity and comfort for all those who use this building. As Gurgaon's corporate and financial hub grows, this tower will support swift commercial dispute resolution and strengthen investor confidence, besides timely adjudication of other civil, criminal and family cases. But above it all, it must serve the ordinary citizen, the under-trial, the woman seeking maintenance, the small farmer trying for adequate compensation for his land, who looks to this institution for timely relief. Advocates are pillars of an efficient judiciary. Gurgaon-based advocates have been requesting for a long time for allotment of land and construction of advocates' chambers. Construction of chambers for advocates within the vicinity of the Tower of Justice will certainly help the efficacy of the judicial process. I request the Chief Minister to kindly look into this matter. Lastly, I want to conclude by saying that legal reforms extend far beyond the courtroom. They unlock capital, strengthen investor confidence, provide justice to all, ensuring that the fruits of growth reach every citizen. As we inaugurate the Tower of Justice today, we do so with the conviction that it will stand as a living promise to the people of Gurgaon and of Haryana that justice shall be swift, accessible and dignified for all. I once again thank the Honorable Chief Justice of India, the Honorable Chief Minister of Haryana,
union ministers, the esteemed judges, and all dignitaries present here for their continued support in this shared endeavor. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, sir. The path of justice is strengthened when sound legal policy is complemented by modern judicial infrastructure. Today's ceremony celebrates that pursuit of excellence. It is now my privilege to invite गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस, जिसको हम न्यू जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, उसके उद्घाटन के अवसर पर हमारे विजनरी एंड डायनेमिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी, हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी साहब, केंद्रीय मंत्री और भूतपूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब, मंच पर उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विप्रनाथ जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे साथ मंत्री हैं और यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जस्टिस दीपक सिब्बल जी, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी जी, जस्टिस हरप्रीत बराड़ जी और जस्टिस रोहित कपूर जी, ये सभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स के माननीय जज हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय जज हमारे मध्य उपस्थित हैं, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी, जस्टिस एजी मसीह साहब, जस्टिस प्रशांत वराले जी, जस्टिस चंद्रशेखर जी, जस्टिस संजीव सचदेवा जी, जस्टिस अरुण पल्ली जी और जस्टिस शील नागू जी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस लीजा गिल भी हमारे मध्य उपस्थित है। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्रीगण और अन्य हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशगण भी आज के इस परिसर में उपस्थित हैं और चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी साहब भी उपस्थित हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जिनके कारण आज हम यहाँ सम्मिलित हुए हैं, हमारे गुरुग्राम और नू में भी दो हमारे सबऑर्डिनेट जुडिशरी के ऑफिसेज बने हैं ताऊमेर पुनाना में, उनके भी जो हमारे नू के जज हैं गर्ग साहब और हमारे गुरुग्राम के नरेंद्र जी सूरा साहब, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। एडवोकेट जनरल हमारे परमिंदर सिंह चौहान साहब और भी अन्य वरिष्ठ एडवोकेट हैं, बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी हैं और हमारे मीडिया के भी साथी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं। सबको नमस्कार करते हुए मैं मेरी बात को प्रारंभ करता हूं और जो सविता जी वशिष्ठ हमारे मध्य में हैं मातृशक्ति के प्रतिनिधि के रूप में, उनको भी प्रणाम करते हुए मेरी बात को शुरू करता हूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ, सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह नवीन न्यायिक परिसर उस संकल्प का साकार रूप है जिसके केंद्र में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण, प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है आज का दिन का गुरुग्राम के लिए भी। और गुरुग्राम में जैसे यहाँ बहुत कथा भी प्रचलित है, युधिष्ठिर
का भी यहाँ से संबंध और हमारे कौरव पांडव का भी यहाँ से संबंध है, शीतला माता का भी यहाँ संबंध है, द्रोणाचार्य जी का आश्रम भी यहाँ है। तो इसलिए गुरुग्राम के निवासियों के लिए भी बहुत शुभ अवसर है। आप बधाई दे सकते हो सभी निवासियों के लिए, ताली भी बजा सकते हो। हमारा लोकतंत्र एक दूरदर्शी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की सुदृढ़ नींव पर निरंतर पुष्पित पल्लवित हो रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय डेमोक्रेसी को 3 स्वतंत्र किंतु परस्पर पूरक ऑर्गन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रूप में प्रदान किए हैं। जब ये तीनों ऑर्गन्स अपनी अपनी इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हुए पब्लिक वेलफेयर के सर्वोच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समन्वित रूप से कार्य करते हैं, तब राष्ट्र अदम्य गति से प्रगति करता है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए हम इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी को गवर्नेंस, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम सहित प्रत्येक क्षेत्र में साकार होते हुए देख रहे हैं। आज यहां गुरुग्राम में भी वो दृश्य नजर आ रहा है। गुरुग्राम का ये नया जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, टावर ऑफ जस्टिस, उसी रिफॉर्म जर्नी का एक जीवंत और उत्कृष्ट उदाहरण है। यह इस बात का प्रतीक है जब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जनहित के उद्देश्य से कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ कार्य करते हैं, तब आधुनिक, सुलभ और सिटीजन सेंट्रिक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण संभव होता है। आज भारत एक ऐतिहासिक और व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। हम केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लोकतंत्र के तीनों स्तंभों का व्यापक आधुनिकीकरण करते हुए विकसित भारत निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार हम एक मजबूत जुडिशरी के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को आवश्यक समझते हुए ये जो भारत सरकार की स्कीम है, जिसको हम CSS कहते हैं, राज्य सरकारों का भी इसमें सहयोग रहता है और इससे हम डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए अभूतपूर्व निवेश भी कर रहे हैं। आपको जान करके भी प्रसन्नता होगी कि गुरुग्राम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगभग 243.76 करोड़ रुपए की लागत से ये अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। अभी हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी के साथ और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो हम एक कॉन्फ्रेंस रूम देख रहे थे, बड़े बड़े ऑफिसेज में भी ऐसा कॉन्फ्रेंस रूम नहीं होता है। इतनी आधुनिक जो सुविधाएं यहाँ विकसित हो रही है, उससे न्याय व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, जनता को भी न्याय जल्दी मिलेगा और ये न्याय का मंदिर कहलाने का हक भी रखेगा। ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। इसी श्रृंखला में हमने ई कोर्ट्स, ई प्रोसिक्यूशन, ई प्रिजन्स और ई फॉरेंसिक को भी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जोड़कर ई सेवा केंद्र, ई फाइलिंग 3.0, डिजिटल पेमेंट और नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और त्वरित बनाया जा रहा है। न्याय विकास पोर्टल भी इस दिशा में शानदार काम कर रहा है। अंत में विकसित भारत तभी संभव होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना लिया है कि हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। उसमें न्याय सबको सुलभ मिले, जल्दी मिले और नागरिक केंद्रित न्याय व्यवस्था का निर्माण हो, तब हम विकसित भारत को के लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकते हैं। अंत में मैं इस टावर ऑफ जस्टिस के निर्माण से जुड़े हुए सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है ये टावर ऑफ जस्टिस ऐसा प्रकाश स्तंभ बनेगा जहां न्याय में विलंब न हो, न्याय से वंचित होने की कोई संभावना न रहेगी। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर संविधान के मूल्यों से प्रेरित होकर एक ऐसे विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लें जो विकसित होने के साथ साथ न्यायपूर्ण, समावेशी और संवेदनशील भी हो। मैं
हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अनुमति से 4 लाइनें यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य होता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं तो मैं 4 लाइनें लिख लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ। माहौल, अभी जो माहौल है उसका है, मानसून का माहौल है। अभी माहौल चल रहा है, बरसात शुरू हो गई है, यहाँ भी माहौल का आनंद ले रहे हैं अपन। मानसून का माहौल है, हर ओर उल्लास के बोल हैं, हर ओर। क्या शानदार टावर बना है। उद्घाटन कर रहे थे तो जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर थे उनके चेहरों पे खुशी मैं देख रहा था, तो मुझे समझ में आया कि मानसून का माहौल है, हर ओर उल्लास के बोल हैं। आज का दिन अनमोल है, अवसर टावर के पट खोल है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। Thank you so much, sir. Every enduring institution is built upon foresight, commitment, and collaborative aspirations. Today's inauguration is a reflection of that united resolve of responsive justice. It is now my privilege to invite Shri Manohar Lal, Honorable Cabinet Minister, Union of India, to graciously address this august gathering. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सम्मानीय जस्टिस सूर्यकांत जी, हरियाणा के हमारे बहुत ही जुझारू मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, भारत सरकार के विधि राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, भारत सरकार के हमारे अन्य राज्य मंत्री और स्थानीय हमारे यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी, जस्टिस विक्रमनाथ जी, न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस अश्विनी कुमार जी, कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, जस्टिस हरसिमरत सिंह सेठी जी, अध्यक्ष बिल्डिंग कमेटी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, सभी हमारे अन्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सभी माननीय न्यायमूर्तिगण, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, विधि विभाग के अधिकारीगण, बार एसोसिएशन के सभी हमारे पदाधिकारीगण, मीडिया बंधुओं के मित्रों, भाइयों बहनों, आज का ये सुंदर अवसर, सबसे पहले तो मैं उन बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, जिनको इस भवन निर्माण के कला में एक अच्छे काम के नाते से उनको सम्मानित किया गया, चाहे वो बहुत जमीन से जुड़े हमारे लोग हैं। सबसे पहले मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही दोनों हमारे जिले, इन जिलों का जो हमारा ये परिसर गुरुग्राम और नूंह जिला का पुराना में बना है, दोनों के ही जो हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं श्री नरेंद्र सूरा जी और डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग जी और इनके सभी साथी जजेस और यहाँ के जो हमारे वकील साहिबान, इनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, क्योंकि वास्तव में तो हम तो शिलान्यास के दिन आए हैं, आखिरकार ये पूरे जो भवन है दोनों, ये हमारे इन दोनों जिलों की जो जुडिशरी है उनके ही काम आने वाले हैं। साथियों, इस भवन का इंतजार बहुत लंबा हुआ है। जितना इंतजार आप लोगों का था, उतना इंतजार मुझे भी करना पड़ा, क्योंकि 2014 में इस न्यायालय की जो जमीन है उसको सुनिश्चित किया गया था। उसके बाद ये शुरू हुआ, थोड़ा समय लगा, लेकिन अंतोगत्वा आज ये इंतजार समाप्त हुआ। कल तक जो भवन निर्माणाधीन भवन था, आज ये भवन निर्माण हो चुका है और अब
इसके उद्घाटन के बाद अब ये केवल भवन नहीं है बल्कि एक न्यायालय का परिसर है। और ये न्यायालय के परिसर में अब कल से जो लोग यहां आएंगे वो यहां पीड़ित भी आएंगे, अपराधी भी आएंगे, अपने पक्षकारों को लेकर के आएंगे। जो हमारे न्यायाधीश मित्र हैं वो बैठ करके और अपने वकीलों के साथ मिल करके उनकी समस्या का हल निकालेंगे। क्योंकि जो भी आता है वो एक आशा को लेकर आता है कि मुझे न्याय मिले। अब वो न्याय लेने के लिए आता है तो उसको पहले से एक धारणा मन में होती है कि इस वकील का व्यवहार ऐसा है, हमारे इस जज साहब का व्यवहार ऐसा है। लेकिन जब वहां परिसर में पहुंचता है तो वहां का भी एक जो वातावरण होता है उस वातावरण का भी असर उसके दिमाग पर जाता है। अगर वो जज हमारे जज साहब किसी ऐसी छोटी बिल्डिंग में, टूटी फूटी बिल्डिंग में बैठे होंगे तो शायद उसको भी पता नहीं लगता है, कहीं ना कहीं परसेप्शन बनता है, पता नहीं क्या न्याय मिलेगा। लेकिन अच्छी सुंदर बिल्डिंग में अगर वो आएगा, उसको आते ही यहां हर प्रकार की सुविधा मिलेगी तो उसके मन में भी एक कहीं ना कहीं आस जागेगी, विश्वास जागेगा कि नहीं, मेरा जो है यहां जो समस्या है उसका हल निकलेगा। तो यहां पर हमारी जो जो व्यवस्थाएं बनी हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत समय के बाद, क्योंकि निर्माणाधीन था उस समय तो मैं आया था, लेकिन वर्षों के बाद आज पूर्ण होने के बाद मैंने देखा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहां बनाई गई हैं सबके बैठने के लिए। चाहे हमारे जजेस के कमरे होंगे, हमारे जो हमारे सेशन जज है उनका अपना कार्यालय, जेने कोर्ट है, और जो भी लोग आने वाले हैं उनके साथ वो लोग सब देखेंगे। आज मीडिया के मित्र भी बड़े प्रश्न दिख रहे थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। अब ये ठीक है कि यहाँ क्योंकि लिटिगेशन बहुत है इस जिले का, इसलिए थोड़ा कंपैरेटिवली बाकी जिलों की अपेक्षा ये भवन बड़ा बना है, बड़े की आवश्यकता यहाँ है। कभी कभी सोचता हूं कि आखिर ये बड़े भवन भी क्यों बनाने पड़े हमें। यहाँ एक दुविधा मन में खड़ी होती है। आज की आवश्यकता के हिसाब से बड़ा भवन बना, इसकी खुशी है, लेकिन बड़े भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा लिटिगेशन बहुत ज्यादा है। अब ये लिटिगेशन लोगों का आपस में लड़ाई झगड़े, पारिवारिक झगड़े, व्यक्तिगत झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, फिर व्यवस्थाओं से, सरकार से झगड़े, सरकार के कर्मचारियों से झगड़े, और इस झगड़ों में खूब संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस पर भी हमको विचार करना होगा कि आखिर संख्या बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। मैं अभी आदरणीय चीफ साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा झगड़े इस समय जमीनों के हैं। लैंड की लिटिगेशन इज द हाईएस्ट वन इन द कंट्री। 15 मिलियन की जो बात बताई गई कि कुल हमारे पेंडिंग लिटिगेशन है, इसमें ज्यादा इसमें जमीनों से जुड़े हुए हैं। अब ये जमीनों के झगड़े निर्णय आप लोग करते हैं, न्याय करते हैं, मानो किसी को पसंद नहीं आता तो वो अपनी फरियाद लेकर के अपील करने भी जाता है, कहीं ना कहीं उसको फाइनल निर्णय मिलता है, संतुष्ट हो ना हो, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फाइनल निर्णय मिलता है। मेरा ऐसा कहना है कि आखिर जो सरकार के विरुद्ध में झगड़े हैं, तो सरकार के विरुद्ध, हालांकि सरकार भी न्याय करती है, न्यायप्रिय कानून भी बनाती है, पॉलिसी भी बनाती है कि लोगों को तकलीफ न हो। मुझे तो अपने पिछले 10 साल का कार्यकाल का पता है, और आज भी 2 साल में वो सब योजनाएं जो हमने पारदर्शी तरीके से लागू की थी आज चल रही हैं। हरियाणा अगर देखा जाए तो इस प्रकार से नागरिक के लिए व्यवस्थाओं में, डिजिटलाइजेशन में, ट्रांसपेरेंसी में बेस्ट स्टेट है। बहुत सी चीजें प्रोएक्टिव होकर के हमने आगे की हैं, फिर भी संतुष्टि तो संतुष्टि है, किसी की होती है, किसी की नहीं होती है। जिसकी संतुष्टि नहीं होती है उसको रास्ता मिलता है कोर्ट का, चलो कोर्ट में जाकर के अपना पर्चा दाखिल कराते हैं। लेकिन सरकार के विरुद्ध हो निर्णय या सरकार के समर्थन में हो, हमें उसके बारे में इतनी अपेक्षा जरूर है कि अगर सरकार के खिलाफ ज्यादा निर्णय आते हैं तो आप हमको कोई नई पॉलिसी बनाने के लिए अगर आप सुझाव देंगे, अगर आप हमको कोई डायरेक्शन भी देंगे तो हम उस हिसाब से उनको लागू करने की भी सरकारों में कोशिश करेंगे ताकि व्यक्ति संतुष्ट होकर के जाए। इस नाते से कई बार संतुष्टि नहीं भी होती है और सरकार के पक्ष में ज्यादा निर्णय आते हैं, जनता फिर भी उसके अंदर संतुष्ट नहीं होती है, तो उसका अगला कारण है वो हमको जनता को संतुष्ट करने के लिए उसको अपने व्यवहार से उसको जागृत करना होगा, अवेयरनेस पैदा करनी होगी कि ये जो आप केस लेकर के आए हैं ये सरकार की नीति ठीक है या नहीं है। अगर खास करके हमारे जो वकील साहिबान हैं उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि हम जो कोई किसी का पीड़ित पक्ष है उसका ठीक पक्ष है
आगे बढ़ाएं, नहीं तो ऐसे ही अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ते हैं। बहुत व्यक्तिगत रूप से भी हमारे वकीलों से बात होती है, केस तो उसका ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, वो आ गया है, अब आया तो मैं उसको कैसे टालूं, तो मुझे उसको टालना पड़ता है, वो टालना नहीं, उसको केस लेना पड़ता है और मुझे उसको दाखिल करना पड़ता है। हार जाता है, उसको पता लगता है केस में दम नहीं था। तो ये सिस्टम जो चल रहा है, इसमें कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसके लिए अगर सुझाव आप लोग देंगे तो निश्चित रूप से हम बैठने के लिए तैयार हैं। हमारी जुडिशरी, हमारी हमारी कार्यपालिका और हमारा जो हमारा लेजिस्लेशन है, तो ये सब मिलकर के इन चीजों में से रास्ता निकालेंगे तो निश्चित रूप से इसका एक लाभ होगा। एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ये जब अच्छा होता है तो जजों जो हमारा नागरिक है उसको एक विश्वास पक्का होता है। हालांकि आज भी बहुत लोगों के मनों में जो जुडिशरी के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास है। बहुत लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि मेरे लिए तो जज है वो भगवान है, जैसे डॉक्टर के बारे में कहता वो मेरा भगवान है, तो जज भगवान है, जज जो करेगा मुझे मंजूर होगा, ऐसा वो कहने के लिए तैयार रहते हैं। और ज्यादा कैसे उसका कन्विक्शन बढ़े, कैसा उसका विश्वास बढ़े, इसके लिए जैसे एक कठिनाई जो हमको ध्यान में आती है कि न्याय कई बार महंगा बहुत होता है। सामान्य व्यक्ति वो उसकी अप्रोच ही नहीं है कि उस महंगे न्याय को अफोर्ड कर सके। और दूसरा, लंबा बहुत चलता है। उस लंबा चलने में उसकी प्रक्रिया इतनी लेंदी है कि एक व्यक्ति कोई केस शुरू करता है और वर्षों वर्ष तक मैंने पता नहीं कि उसके अपने जीवन में भी केस हल होगा या अगली पीढ़ी तक ये चला जाएगा। तो इन प्रक्रियाओं को भी सरल करने का रास्ता हमको ढूंढना चाहिए। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कोर्ट में तो जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैं तो अपने रिश्तेदार के पास जाऊंगा या कहीं मीडिएशन के लिए जाऊंगा या कहीं सरपंच के पास जाऊंगा, या आजकल हमने अपने कई कोर्ट्स और भी खोली हुई हैं, जन अदालतें हमने खोली हुई हैं, तो ऐसी अदालतों में जाकर के फैसला, बहुत आसान तरीके हैं। तो इन आसान तरीकों में वो ढूंढता है, खोजता है, लीगल एड भी हम देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कैसे इसको हम सरल करें और ठीक अच्छा उसको हम आगे बढ़ाएं। सरकार और न्यायालय मिलकर के काम करें। हाँ, मिलकर काम करने में एक जरूर बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारी अपनी अपनी जो स्वायत्ता है, उस स्वायत्ता को जरूर हमको बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि हम मिलकर के कोई जनता के खिलाफ हम कुछ काम करने वाले हैं। अपनी स्वायत्ता को ध्यान रखते हुए, जनता की कठिनाइयों को समझते हुए यदि आगे बढ़ेंगे तो मैं निश्चित रूप से मान के चलता हूं कि लोगों को बहुत लाभ होगा। मैं तो इस अवसर पर इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आज के इस कार्यक्रम की सभी संबंधित लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir.